I'm still surprised that nobody on the internet is talking about these tips. Have you been in one of those phases where after studying for 5 minutes, you're just like, okay, I'll go to sleep, I'll stare into blank space, I'll do whatever, but just not study? If that has been you, then trust me, I've been there too. And these are all the weirdest, most experimental study tips which will really change how you study, and they'll really put you in that mood कि अच्छा ठीक है अब तो पढ़ने का मन कर रहा है. These have all been tried by me, so trust them. Let's start with the first one. I'm pretty sure that everybody does it, but nobody is just saying it. Interviewing yourself. कितनी बार मिरर के सामने बैठ के I've interviewed myself thinking that I've become all rich and successful and wonderful, and somebody's sitting in front of me asking me that, oh, for example like Dear Biceps asking me कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपका टाइम कैसा था, आपने कैसे पढ़ाई करी, all of those questions. I have imagined so many things, becoming an IAS officer, or while I was preparing for NEET, I used to imagine that when I get into the medical college that I want, physics wale sir, Ajay Pandey sir would interview me, he would ask me about my study tips, I would tell this, tell that, and so many things. All of this interviewing really makes you imagine that you're successful and you would feel so nice and gives you that dopamine hit. उसके बाद ना पढ़ने का मन करता है कि भाई यहाँ पहुँचना है ना तो पढ़ लेना चाहिए. But बस इंटरव्यू वाले फेज तक मत अटक जाना. Go beyond that too. Second, all of the education based series. For example, I am in a medical college right now, so I watch House MD. Now I love it because उसमें basically एक team है, वो diagnose करते हैं diseases, and there are so many interesting cases and patients, and तुम बस imagine कर पाते हो कि oh, this is the kind of future I'm walking towards. Similarly, Kota Factory या बहुत सारे animes which are motivational actually. All of these will really put you in that mood कि अच्छा ठीक है यार, ये भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ, पढ़ के मुझे यहाँ पहुँचना है, etc etc. All of these things really help. So even if you're watching series और कुछ भी देख रहे हो, so watch something which inspires you, motivates. Third, this is called the Zeigarnik effect. Now it's basically leaving things unfinished. अब ये थोड़ा weird tip है, but listen to me. ऐसा होता है ना कि तुम एक काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 टास्क इन अ डे, या फिर मान लेते हैं तुम्हें 2 बुक्स पढ़नी है, 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. पहला वाला चैप्टर ऑलमोस्ट 1/4 या 1/3 कर दो, एंड देन स्टार्ट विद द अदर चैप्टर. इससे होगा ये कि जो बाकी चैप्टर फर्स्ट वाला बचा हुआ था ना, वो तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा. आफ्टर यू डन विद हाफ ऑफ द सेकेंड चैप्टर, उसको भी छोड़ दो, पर तुम पढ़ना नहीं छोड़ पाओगे बिकॉज तुम्हारे दिमाग में एक ओपन लूप बन गया है, दोनों चीज़ें आधी आधी खत्म हुई है, एंड बिना खत्म करे तुम्हें अच्छा ही नहीं लग रहा होगा. सो यूल गो बैक एंड फिनिश बोथ ऑफ दोज चैप्टर्स. दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. ट्राई इट वंस. साउंड्स अ बिट अजीब, बट इट रियली वर्क्स. Fourth tip, which is imagining your crush watching you while you're studying. Now, it's a weird tip again, but while you're studying, या तो तुम टॉपर को, क्लास के टॉपर को, या फिर क्लास में जो एक इंसान तुम्हें नहीं पसंद पर थोड़ा नर्ड है, पढ़ता अच्छा है, whatever, imagine them. Think of all the envy, think कि इनसे आगे निकलना है, अभी ये क्या कर रहे होंगे, कहाँ पढ़ रहे होंगे, कहाँ पहुँच गए होंगे. For example, while I was preparing for NEET, I used to imagine the toppers of my class, and I used to think ये टॉपर क्या कर रहा होगा यार अभी, अच्छा ये इसका तो ये सब खत्म हो गया होगा, मेरा तो बचा हुआ है, पर मैं भी खत्म कर लेती हूँ. It just puts you in that phase कि अच्छा ठीक है वो क्या कर रहे हैं तो मैं भी अभी ये करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरी एक दोस्त होती थी, शी हैड अ वेरी ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इन क्लास 10th, एंड बोर्ड्स वाले टाइम पे आई जस्ट यूज टू इमेजिन कि यार अगर ये बंदी अभी लिख रही होती तो ये कैसे लिखती है, क्या क्या बनाती है, कितना सुंदर लिखती है, फ्लो चार्ट्स बनाती है, लाइन्स ऐसे ड्रॉ करती है, वो करती है, एंड आई जस्ट कॉपीड दैट बेसिकली बिकॉज आई वॉज इन दैट फेज ऑफ कि अच्छा ये ऐसे लिखती है. So it really worked for me, and now actually मेरी handwriting बहुत अच्छी है. So weird things like these actually help. Fifth, planning your day to the dot. Now I'll give you an example of this. Okay, it's way back, I can't bring it, but I'll just tell you. आज मैंने पूरा ऐसे प्लान कर रखा है कि मुझे 10 क्वेश्चन ये करने, फिर मुझे 10 मिनट ये वीडियो देखनी है, फिर 10 क्वेश्चन और, फिर 10 मिनट ये, 10 क्वेश्चन और, 10 मिनट ये, उसके बाद मुझे ये PDF पढ़नी है 15 पेजेस इस PDF के, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 15 पेजेस, एंड ऐसे करके मैंने एक पूरा पेज भर रखा है विद एवरीथिंग दैट आई हैव टू डू, राइट. एंड एवरी टाइम आई फिनिश अ टास्क विच हार्डली टेक्स मी लाइक 15-20 मिनट्स, आई टिक इट ऑफ, आई टिक द फर्स्ट टास्क ऑफ, फिर दूसरा वाला करा, द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, द फोर्थ वन, एंड
ये करते करते तुम्हें इतनी मोटिवेशन आती है बिकॉज मिनी डोपामीन हिट्स मिल रहे हैं. बहुत ही छोटे टास्क थे, मेरा पूरा दिन प्लान था, मेरे पास टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज पूरे दिन का काम लिखा हुआ है, इतने छोटे छोटे टास्क लिखे हुए हैं विच आर रियली ईजी टू कंप्लीट एंड रियली गिव यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. सो इंस्टेड ऑफ प्लानिंग 4 things कि अच्छा ये चैप्टर ये इसकी जगह ना छोटा पॉइंट करके लिखो कि ओके 10 मिनट ये करना है, 15 मिनट ये करना है, आधे घंटे ये करना है, ऐसे करके. These small chunks of things will really help you complete. 6th, postponing all of your basic stuff. For example, having a breakfast, taking naps, taking a shower. I'll just give you an example. The moment I woke up in the morning, after I studied for a while, मम्मी ने breakfast ला के रख दिया. But then I did not immediately eat it. I thought कि अच्छा ठीक है यार, ये इतनी सी PDF है, इसके बस मेरे 10 ही पेज बचे, मैं पहले 10 पेज के नोट्स बना लेती हूँ फटाफट, फिर मैं खाना खाऊंगी. बट साइड में क्योंकि मुझे पता है कि खाना ठंडा हो रहा है और थोड़ी देर में मम्मी आके बोलने वाली है कि वाई हैवंट यू ईटन इट, क्या है, सुबह सुबह खाना बनाती हूँ एट्सेट्रा. तो एक स्ट्रेस है मेरे दिमाग में कि ओके आई हैव टू कंप्लीट इट, मुझे जल्दी करना है. एंड उस जल्दी के चक्कर में जो चीज़ शायद मैं 1 घंटा तक घसीटती रहती, वो मैंने बहुत पहले ख़त्म कर ली. सो दिस इज़ वन टिप विच माइट रियली वर्क. ऐसे करके ना जब तुम्हारे दिमाग में कुछ स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नैप लेने जाना है, तुम दिन में 1 घंटा सोते हो टाइप्स, राइट. नाउ जस्ट थिंक कि पहले मैं ये 10 पेज खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं नैप ले लूँगी. इससे होगा ये कि तुम्हें पता है तुम्हारा नैप टाइम रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे तुम काम पोस्टपोन कर रहे हो, तो तुम जल्दी खत्म करोगे एंड तुम एक्चुअल में काम कर लोगे. एंड ऑल्सो नैप लेने में ज़्यादा मज़े आते हैं. मुझे ब्रेकफास्ट खाने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ कि ओके यार, आई हैव फिनिश्ड समथिंग मोर देन आई एक्चुअली थॉट. 7th tip, which is daydreaming. Everybody does it, we all know. Now, on songs या वैसे जैसे भी तुम दिन में बैठ के टाइम वेस्ट करते हो, डे ड्रीम कर रहे होते हो, you can actually utilize that in a good way. In the sense that when you daydream good things. Daydream of you becoming very rich, very successful, very intelligent, being the most smartest person in the room. Imagine all of those things on songs which give you that motivation. जैसे I listen to this one song. I'm not going to tell you which song it is, but जब उस सॉन्ग का पूरा हिट वाला मोमेंट आता है ना, उस टाइम मैं इमेजिन करती हूँ कि ठीक है मैं इतनी सक्सेसफुल बन जाऊंगी ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा होगा और व्हाटएवर. नाउ दैट सॉन्ग हैज़ बीन एसोसिएटेड टू माई सक्सेस अपेरेंटली. सो एवरी टाइम आई लिसन टू इट, मुझे एक अलग ही मोटिवेशन आती है कि अच्छा हाँ यार, इतना इमेजिन कर लिया तो मेहनत भी करनी पड़ेगी. So yeah, when you listen to songs, have at least 2 or 3 songs like these where you daydream about good things and work in that direction. It's just basically manifesting, but yeah, in other ways. 8th, okay, now this is a tip which I don't know, try it for yourself, it really works for me. A lot of the times मैं मंदिर के सामने बैठ के पढ़ती हूँ. मंदिर के सामने सोफा है, I sit in front of it and then I start studying. And I imagine कि नहीं यार, भगवान भी देख रहे हैं, उनसे मैं इतना चीज़ें मांगती हूँ, I request him for so many things. Now if I won't study, then वो देंगे क्यों मुझे? Things like that. Or sometimes I sit in my brother's room and I think कि इसको मैं बोलती हूँ पढ़ने के लिए, मैं खुद ही नहीं पढ़ूंगी तो क्या होगा? या फिर मैं मम्मी के रूम में बैठी होती हूँ where I know कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो she is definitely going to say, मम्मी पापा पक्का बोलेंगे कि क्या करिए, पढ़ ले. So when you first of all, this is just basically changing your study spaces while studying so that अलग अलग जगह बैठ के पढ़ोगे तो एक वो बोर्डम वाली फीलिंग नहीं आती, प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ी कम होती है. एंड सेकेंडली when you associate it कि नहीं यार, I have somebody to show that I'm studying, you will probably study more. Now one more tip which was given to me by somebody else and it really works. If in case you study in a library or with some other people जहाँ साइड में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, do this one thing. जैसे ही वहाँ पहुँचोगे, थिंक कि मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक साइड वाला उठ के नहीं जाएगा. आई एम गोइंग टू स्टडी मोर देन द अदर पर्सन. आई एम नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट वन लीविंग दिस डेस्क. आई विल नॉट गेट अप टिल दे गेट अप. डू दैट वंस, ठीक है. अब वो तुम्हारी किस्मत पे हो सकता है सामने वाला 2 घंटे में चल जाए, हो सकता है 8 घंटे में भी ना जाए. बट व्हेन यू डू दिस और तुम सोच लेते हो कि नहीं यार, ये साइड वाला जब तक नहीं जाना ना, तब तक मैं भी नहीं खड़ी हो रही, मैं भी पढ़ रही हूँ. सो दैट इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन. एंड देन यू स्टडी इन वो कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया अब तो पढ़ना पड़ेगा. एंड यू डोंट नो तुम कितने सारे आवर्स कवर कर लोगे डूइंग दिस. जस्ट थिंक दैट आई एम गोइंग टू बी द लास्ट पर्सन लीविंग द लाइब्रेरी. Space in which you study in, it really matters. If it's unclean, if it's really untidy, सब कुछ फैला हुआ है, तुम नहाए नहीं हो, तुम्हारे खाना नहीं खाया है ढंग से, you've just had junk food, all of these things, they really matter. They sound like very small things, very random things, but trust me, they do matter. Have a nice shower, arrange all of your books, arrange everything nicely in your room, tidy up everything, have a good hearty breakfast and then sit down to study. Trust me, you'll be more in the mood to study.
राइट, एंड गुस्सा नहीं आ रहा होगा पढ़ते हुए, अच्छा लग रहा होगा इनफैक्ट. दिस might be personal to everybody else, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, but if you ask me, I write down every single thing that I'm learning, and it just helps me not imagine random things, not go into any overthinking या anxiety वाले loops, and just basically not procrastinate and focus on what I'm studying. For example, this is one page that I have. I usually take sheets like these only. And जो मैंने PDF पढ़ी है उसको basically मैंने एक point करके बहुत ही छोटा छोटा सब कुछ note down करा है इसमें. First, it helps me in making short notes, and second, it helps me concentrate and focus on what I'm studying really. So this is one thing you can do अगर तुम भी बहुत जल्दी distract हो जाते हो या overthinking वाले loops में फंस जाते हो. And the last one, recording yourself while studying. You don't have to upload it anywhere. You don't have to send it to anybody. You don't have to do anything about it. Just पुट दैट कैमरा देयर. अब उससे होगा ये कि वो कैमरा रखते ही 5 मिनट बाद अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा अरे यार 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो गई, मैं वीडियो बन रही है. एंड देन यूल गेट बैक इन टू स्टडिंग. एटलीस्ट तुम खुद को 1 घंटा आधा घंटा तो पुश कर ही लोगे, राइट. सो रिकॉर्डिंग योरसेल्फ व्हाइल स्टडिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया. लास्ट वन, नाउ आई नो बहुत सारी टिप्स हो गई है बट स्टिल, स्टडी ट्रेंड्स. स्टडी ट्रेंड्स, अब देखो यार तुम इंस्टा पे भी तो इतने सारे ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हो ना कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, गाना इसमें चल रहा है, ये कपड़े अभी फैशन में चल रहे हैं, ये वो एट्सेट्रा. देन ट्राई फॉलोइंग स्टडी ट्रेंड्स. बहुत सारे स्टडी ट्रेंड्स आते रहते हैं. जैसे बीच में कैंडल वाला आया था कि आई एम गोइंग टू स्टडी जब तक कैंडल बर्न आउट नहीं होती, आई एम गोइंग टू स्टडी जब तक कि आइस मेल्ट नहीं होती. सो मेनी अदर थिंग्स. ट्राई फॉलोइंग दैट. इट माइट रियली वर्क फॉर यू. Now, these were all of the weirdest tips that I could think of, which really worked for me. If you have any more tips, please write it down in the comment section below. I think everybody would really appreciate it. That was it for the video. Follow for more.